Students, welcome to Success Series. Today we'll be taking up class 10th, chapter number 15, our environment. My name is Pari, so let's see all the important questions and answers of this chapter. सबसे पहले हम इस चैप्टर के MCQs देखते हैं. Excessive exposure to ultraviolet radiation causes, and the options are inflammation of liver, cancer of skin, damage to the lungs or jaundice. सो अगर यूवी रेज का एक्सपोजर होता है तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्किन के. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which group of organisms are not constituents of a food chain? अगर हम इन सारी फूड चेन के एग्जाम्पल्स को देखें तो जो सी का एग्जाम्पल है उसमें वुल्फ, ग्राफ, स्नेक और टाइगर गिवन है. इनका कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है एंड अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे वुल्फ और टाइगर के बीच में भी कोई कनेक्शन बैठ नहीं रहा. सो द आंसर इज सी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट लिंक इन एनी फूड चेन इज यूजुअली ग्रीन प्लांट्स बिकॉज, एंड द ऑप्शंस आर क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, ये कैपेसिटी रखते हैं अपना फूड खुद बनाने की सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर ये मोर हर्बीवोर्स होते हैं. करेक्ट आंसर इन सब में से ये होगा कि फर्स्ट लिंक किसी भी फूड चेन का ग्रीन प्लांट्स इसलिए होंगे क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग सनलाइट. Dear children, let's see the next question. Which of the following is a logical sequence of food chain? The correct answer is A part, producer, then consumer, and then decomposer. Children, let's see the next question. Acid rain is caused by the oxides of, and the correct answer is sulfur and nitrogen. Sulfur और नाइट्रोजन इन दोनों की ही ऑक्साइड्स के कारण एसिड रेन होती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. So dear learners, here they are asking which of the following is an abiotic component of an ecosystem. So the correct answer is humus. क्योंकि ह्यूमस को छोड़ के बाकी जो ऑप्शंस है बैक्टीरिया, प्लांट्स और फंगाई, ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. So the correct answer is humus. Let's see the next question. In a food chain, the third trophic level is always occupied by, and the correct answer is carnivores. So now let's move to the next question. Let's see this question, dear children. In the given food chain, if the amount of the energy at the fourth trophic level is 4 kilojoule, so यहाँ पे ये 4 kilojoule given है, what will be the energy available at the producer level? For children, next level पे ट्रांसफर होते होते 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है. सो इस एनर्जी को 4000 किलो जूल्स होना पड़ेगा, तभी 10% ट्रांसफर होके ये 400, फिर दोबारा से ये 10% ट्रांसफर होके 40 किलो जूल, और फिर इस यही 10% ट्रांसफर होके 4 किलो जूल रह जाएगी. सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट. Let's see another question. Which of the two in the following sets belong to the same trophic level? And the correct answer is frog and lizard. ये दोनों एक ही trophic level पे belong करते हैं क्योंकि इनमें से कोई भी एक upper trophic level और lower trophic level पे present नहीं है, दोनों same trophic level पे present है. Let's see the next question. Dear learners, the next question is which of the following chemicals causes depletion of the ozone layer? So the correct answer is क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारी ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन हो रहा है. Children, let's see questions of 1 marks. See this slide. What are the two main components of our environment? पहला component होता है biotic components, जिसमें organisms लिविंग क्रीचर्स होते हैं जैसे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डीकम्पोजर्स, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडिफिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि रेनफॉल, सॉइल एक्सेट्रा.
Which compounds are responsible for the depletion of ozone layer? The correct answer is ozone depletion होती है chlorofluorocarbons, halogens, मीथेन, N2O, क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सारे सब्सटेंसेस की वजह से. See the next question. Why are green plants called producers? Green plants को हम producers इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बना सकते हैं कि इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं जो कि बाकी और ऑर्गेनिजम्स नहीं बना सकते. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें एक फूड चेन का एग्जाम्पल देना है जिसमें 4 ट्रॉफिक लेवल्स हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्राफ एक प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट एक हर्बीवोर है, इंसेक्टिवोरस बर्ड एक कार्निवोर 1 कहलाएगी विच कैन बी ईटन बाय अनदर कार्निवोर 2 विच इज लाइक द हॉक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why there has been a large hue and cry against the use of CFCs? अब जो ये CFCs होते हैं यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डियर चिल्ड्रन, ये अपर लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर में जाके जो कि स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है उसमें ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसे खराब करते हैं, उसमें होल्स बनाते हैं जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हमारी अर्थ को रीच कर पाती हैं जो कि वेरियस काइंड्स ऑफ स्किन कैंसर्स और आई डिफेक्ट, आई साइट वीक करना, इन सारी ही रीजंस के लिए कंट्रीब्यूट करती है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 mark questions. Let's see this question. Name the type of compounds which are used as refrigerants and in fire extinguishers that deplete the ozone layer in the atmosphere. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि रेफ्रिजरेटर में मौजूद होते हैं और हेलोन्स जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में होते हैं, उनकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है. Let's see this question. Which gas shields the surface of the earth from harmful radiations of the sun? Why are UV radiations harmful to organisms? Ozone gas जो होती है हमारी अर्थ को harmful radiation से बचाती है. जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं कि ये स्किन कैंसर प्रोड्यूस कर पाती हैं, ये कैटरैक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये इम्यूनिटी जो ह्यूमंस के अंदर मौजूद होती है उसको ख़त्म कर सकती हैं, काफ़ी सारी म्यूटेशंस लेकर आ सकती है. इट कैन फॉल इन फोटोसिंथेसिस, इट कैन ब्लाइंड विद द एनिमल्स एंड ये उनके छोटे जो अनबॉर्न चिल्ड्रन होते हैं उनको तक किल कर सकती है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw a line diagram to show flow of solar energy in the ecosystem. So for example, this is the sun जो कि 1000 जूल ऑफ सोलर एनर्जी दे रहा है. तो प्लांट्स के लिए 10% जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो प्लांट फूड के फॉर्म में होगी जिसमें 990 जूल्स ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन्वायरमेंट को. फिर इसमें से 10 जूल ऑफ एनर्जी आगे जाएगी जिसमें हर्बीवोर्स के पास 1 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी एज फ्लैश फूड. दोबारा से 9 जूल्स एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी. फिर उसके बाद 1 जूल यानी 10% एनर्जी ही इनिशियल 10% ऑफ 10 जूल का यानी 1 जूल ऑफ एनर्जी वो आगे जाएगी जिसमें 0.1 जूल एनर्जी अवेलेबल होगी एज फ्लैश फूड फॉर प्राइमरी कार्निवोर्स जिसमें से 0.9 एनर्जी लॉस्ट तो ऑलरेडी पहले ही हो चुकी होगी. 0.1 जूल में से आगे 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाएगी यानी 10% ऑफ 0.1 that is 0.01 joules energy will be available for flesh food or 0.09 joule of energy will be lost to the environment as heat. Children, हमें एक चीज़ याद रखनी है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सन, प्लांट्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स को फ्लो चार्ट में मेंशन करना ही होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the following food chain, plants provide 500 joules of energy to rats. How much of energy is available to hawks from snakes? So for example, अगर plants 500 joules अपने पास रख रहे हैं अभी, तो इस एनर्जी का कितना hawks from snakes available हो पाएगा? So 500 में इसका 10% होता है 50 का 10% होता है 5.
सो 5 में से हॉक्स के पास 5 जूल्स पहुंच पाएगा. Now let's move to the next question. Explain biological magnification with the help of an example. Biological magnification का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा concentration में increase आता रहता है chemical per unit weight किसी भी organism के अंदर जब वो एक successive trophic level में enter करता है. For example, जितने भी harmful chemicals होते हैं जैसे DDT, इनकी concentration आगे फूड चेन में जाते जाते काफ़ी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर के अंदर DDT फॉर एग्जाम्पल 0.002 ppm, ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन है. तो नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाके प्लैंकटन के अंदर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया है. नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. और फिश ईटिंग बर्ड्स में तो 16 ppm तक पहुंच गया है. यानी जब भी हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं डियर लर्नर्स, तो चिल्ड्रन हमें ये याद रखना होगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो केमिकल पर यूनिट वेट के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. Distinguish between biodegradable and non-biodegradable substances. List 2 effects of each of them in the environment. तो biodegradable substances हैं जो आराम से सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाए, ये स्टिंक करते हैं जो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर और फाउल स्मेल्स प्रोड्यूस करते हैं. इन पे पेस्ट्स और पैथोजेंस आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब भी बायोडिग्रेडेबल डिके करता है तो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है काफ़ी सारी फ्लाइज एक्सेट्रा के लिए. इनके अंदर काफ़ी सारे पैथोजेंस भी इकट्ठा हो सकते हैं. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सबसे पहला होता है डंपिंग एरिया. इनको डंप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. किसी भी पीस ऑफ लैंड को बैरन स्टेट में ये ले आ सकता है. ये एक लैंडस्केप पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. जितने भी पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और जितने भी केमिकल्स होते हैं वो वाटर और फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस कर पाते हैं. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बायो मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है. See the differences between biodegradable and non-biodegradable wastes. Biodegradable waste biological होते हैं. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिग्रेड किए जा सकते हैं. ये नेचर में एक्यूमुलेट नहीं होते. ये बायोमैग्निफिकेशन शो नहीं करते. ये एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. इनके एग्जाम्पल्स है गार्बेज, लाइफ स्टॉक वेस्ट, सीवेज एक्सेट्रा. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डियर चिल्ड्रन, ये जनरली मैनमेड होते हैं. इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाते. ये नेचर में एक्यूमुलेट होते हैं. ये बायोमैग्निफिकेशन कर पाते हैं और इनको हम कुछ ही एक एक्सटेंट तक रिसाइकिल कर पाते हैं. इनको रिसाइकिल करना काफ़ी मुश्किल होता है. एग्जाम्पल्स लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, निकल, कैडमियम, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा. Children, let's see the next question. Why are bacteria and fungi called decomposers? And list any 2 advantages of decomposers to the environment. Decomposers जैसे काफ़ी सारे बैक्टीरिया और फंगाई काफ़ी ज़्यादा सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, यानी ये सैप्रोफाइट्स होते हैं. ये अपना नरिशमेंट ऑर्गेनिक रिमेन्स यानी ऑर्गेनिक लेफ्ट आउट से लेते हैं. ये काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो कि काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं. बैक्टीरिया और फंगाई डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. इनके एडवांटेजेस ये होते हैं कि सबसे पहले जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं और ये ऑर्गेनिक रिमेन्स को हमारे अर्थ से हटाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं. मिनरलाइजेशन, डिकम्पोजर्स काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक रिमेन्स में सिक्रीट कर पाते हैं, यानी उनको ट्रैप कर लेते हैं जो कि रिसाइकिल हो पाते हैं.
Now, children, let's see the next question. What is ozone? How it is formed in the atmosphere? Explain with equation. How is ozone layer useful? And we have to, children, name the substances responsible for the depletion of ozone layer. Now, children, ozone एक ट्राइएटॉमिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, जिसका फॉर्मूला होता है O3. ओजोन अपर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है. चिल्ड्रन, इसका इक्वेशन होता है O2. यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक होके नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है. नाउ जो ऑक्सीजन होता है वो इसी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके O3 बनाता है, और इसी O3 मॉलिक्यूल को हम ओजोन कहते हैं. जो हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, N2O, क्लोरीन, हैलोन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हैं. Now, children, let's see the next question. What are trophic levels in food chain? Explain the flow of energy through food chain. And also, children, we have to write a 4 trophic level food chain and represent it in the form of ecological pyramid. Dear children, जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो स्टेप्स या फिर डिविजन्स होते हैं किसी भी फूड चेन की, जिसमें हमें प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स एक्सेट्रा को लेबल करना पड़ता है. लेट्स सी, दिस इज अ पिरामिड. सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स है, फिर जू प्लैंक्टन, स्मॉल कार्निवोरस फिश, लार्ज कार्निवोरस फिश. तो ये एक तरीके का ट्रॉफिक लेवल्स का एग्जाम्पल है. नाउ चिल्ड्रन, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन के बारे में हमेशा हमें ये याद रखना होगा कि फूड चेन की शुरुआत हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. फ्रॉम प्रोड्यूसर्स द एनर्जी वुड देन पास इनटू द हर्बीवोर्स. अ लॉट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड ड्यूरिंग द ट्रांसफर, उसी को यूटिलाइजेशन जो हर्बीवोर्स कर पाता है वो 10% लॉ के अकॉर्डिंगली सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब कर पाता है. फ्रॉम हर्बीवोर्स वो एनर्जी फिर दोबारा से प्राइमरी कार्निवोर्स तक पास ऑन होती है, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी 90% एनर्जी डेसिपेट होके लॉस हो जाती है. सिर्फ उसकी बची हुई 10% हर्बीवोर्स की एनर्जी ही आगे पास होती है प्राइमरी कार्निवोर्स तक. फ्रॉम प्राइमरी कार्निवोर्स ऑल्सो चिल्ड्रन 10% एनर्जी ही पास हो पाती है सेकेंडरी कार्निवोर्स तक. सो 10% लॉ के अकॉर्डिंगली ओनली 10% ऑफ द प्रिसीडिंग energy form is transmitted. Now let's move to the next question. जो हमारा ट्रॉफिक लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल कार्निवोरस फिश, लार्ज कार्निवोरस फिश. अब इनमें जो सन होता है वो 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स को दे पाता है. प्रोड्यूसर से 10% एनर्जी हर्बीवोर्स को जाती है, हर्बीवोर्स की 10% एनर्जी प्राइमरी कार्निवोर्स को जाती है, और प्राइमरी कार्निवोर्स की 10% एनर्जी ही सेकेंडरी कार्निवोर्स तक जा पाएगी. इसे ही हम 10% लॉ बोलते हैं. सो थैंक यू चिल्ड्रन, होप यू आर डूइंग वेल. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Do like and subscribe our channel. Thank you.